हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चे। आई होप यू ऑल आर ओके और फाइन। सो बच्चे, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ नॉन और टाइप्स ऑफ नॉन कितने होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो आज उन सारे टाइप्स ऑफ नॉन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली। सो बच्चे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन होता है। फर्स्ट, लाइक आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सो सी केयरफुली। फर्स्ट वन इज योर प्रॉपर नॉन। फर्स्ट is your proper noun. So in proper noun, always try to understand that a proper noun is the name of a particular person, animal, place or things. Like मैं एक तरह से हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँ, जैसे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर, सो लिसन केयरफुली और सी केयरफुली। सो अ प्रॉपर नाउन इज a proper noun is the name of a person, name of a particular person means कोई भी विशेष व्यक्ति हो, like famous you can say that particular person, place, animals or thing. This all are known as the proper noun. Like किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम हो, या किसी विशेष वस्तु का, या फिर किसी विशेष स्थान का, या फिर किसी विशेष जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन हिंदी यू कैन से दैट व्यक्तिवाचक संज्ञा। सो आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर नाउन। सो सी हियर, लाइक आई एम जस्ट सेइंग दैट राम इज ए प्रॉपर पर्सन। ओके, देन लाइक ताजमहल, Taj Mahal is a famous, you can say that monument or place also. I'm just telling you example. Okay, then our second types of a noun, that is your common noun. Second times is your common noun. So in common noun, always try to understand that a common noun is the name of a given in a common to every person or thing of the same class or kind. Like हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो जिस नॉन से किसी खास व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या फिर श्रेणी का बोध होता है, उसे हम कॉमन नॉन कहते हैं। यू कैन से दैट इन हिंदी कॉमन नॉन, लाइक यू कैन से दैट साधारणवाचक संज्ञा। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नॉन। सो अ कॉमन नॉन, a common noun is a name given in common to every person, to every person or thing, every person or thing of the same class, of the same class, or you can say that same kind also. That means common noun. Like I'm just writing here the example. So in common noun you can say that, like I'm just saying about that boy is a common noun. Boy तो हर टाइप्स के होते हैं, लाइक अलग अलग नाम के बॉय होते हैं। यू कैन से दैट इन कॉमनली बॉय, एंड यू कैन से दैट गर्ल ऑल्सो। गर्ल भी एक कॉमन नाउन हुआ। जैसे मैं ट्री का एग्जांपल देना चाहूँ, ट्री में तो बहुत सारी ट्री होते हैं, जैसे कि मैंगो ट्री मान लीजिए आप, बनाना ट्री, वॉट एवर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट कॉमनली ट्री। ओके, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन. So our third types of a noun, that is your, I'm just writing here, so collective noun. What? Collective noun. So collective noun आपको सुनने से ही लग रहा होगा, means कोई भी collection हो. Like you can say that a collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as the same as a whole. जैसे मैं हिंदी में बोलूँ, जिस संज्ञा या फिर जिस नॉन से एक की ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नॉन कहते हैं. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नॉन. सो सी केयरफुली. सो अ कलेक्टिव नॉन is the name
of a number, name of a number of persons, number of persons or things taken together, taken together and spoken, and spoken what, spoken of as a same as a whole, spoken as a one whole. Okay, that means collective noun. So I'm just saying like example of that collective noun. So like you can say that key class is example of collective noun. How you can say that class is a collective noun? Class means वर्ग, like class तो बहुत होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड वट एवर यू कैन सी दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट फॉर only in collection you can say that class. Okay, and I'm just saying about that the example like crowd. You know the meaning of crowd? Crowd means झुंड, means कोई भी persons का झुंड हो, that's you can say that in collection way you can say that crowd of a person, बहुत सारे आदमियों का झुंड. Like one I'm more just writing example of collective noun, just like you can see that bunch. Bunch means होता है गुच्छा. आप बना like you can see that आप जाओगे खरीदने के लिए अंगूर, अंगूर मीन्स ग्रेप्स, तो ग्रेप्स जो खरीदोगे तो you can't say that कि one grapes means bunch of grapes, you can say that in collective noun. In collective noun you can say that the grapes, bunch of grapes, that's all means that a collective noun. So after four types of a noun, I'm just writing here the four types of a noun, that is your what, four types of a noun, that is material noun. What? Material noun. So in material noun, a material noun is the name of material substance which is measured or weighed but not counted. Like हिंदी में बोलना चाहूँ, जिस संज्ञा या फिर जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं. सो राइटिंग है, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द डेफिनेशन. सो अ मटेरियल नाउन, a material noun is the name of a material, name of a material, या फिर यू कैन से दैट सब्सटेंस ऑल्सो, मटेरियल और सब्सटेंस, मटेरियल या फिर सब्सटेंस विच इज मेजर्ड, विच इज मेजर्ड, जिसे हम नाप या फिर माप सकते हैं, और वे मीन्स बट नॉट काउंटेड. ओके, बट नॉट counted, that means that material noun. Just I'm writing here the example of material noun. So see here, like I'm just saying about the milk. milk को हम कभी भी जो है measured क्या, which can be measured or weighed but not counted. milk को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं. सो लाइक एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन यू कैन से दैट मिल्क. एंड वन मोर एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग हियर, यू कैन से दैट कॉफी. सो कॉफी को हम कभी भी ना तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, ओनली इसको क्या करते हैं, ना इसको हम काउंट कर सकते हैं या फिर ना इसको हम मेजर कर सकते हैं. ओनली कॉफी को हम क्या करेंगे, वेट कर सकते हैं. यू कैन से दैट द एग्जांपल ऑफ, इट्स आल्सो कॉफी इज एग्जांपल ऑफ मटेरियल नाउन. ओके, सो आवर लास्ट टाइप्स ऑफ ए नाउन, सो आवर लास्ट टाइप्स नाउन दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. लास्ट टाइप ऑफ नाउन दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So abstract noun means like you can say that कि किसी भी गुणवाचक मीन्स गुण के बारे में बताया, गुणवाचक संज्ञा के बारे में बताया. यू कैन से दैट कि आई एम जस्ट सेइंग अबाउट इन इंग्लिश डेफिनेशन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक और फिर या फील बट कैन नॉट सी और टच. ओके, तो मीन्स हिंदी में जैसे कहना चाहूँ, जिस नॉन या फिर जिस संज्ञा को देखा या फिर छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन. सो एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ समथिंग, name of something that we can
that we can only think, या फिर you can say that of or feel also, think or feel also, but cannot be see, but cannot see or touch, but cannot see or touch. So this one is our last steps of a noun, that is abstract noun. So I'm just saying about that example of abstract noun, like you can say that goodness means, goodness means अच्छाई, मीन्स हम फीलिंग करके या फिर थिंक करके हम किसी के बारे में गुडनेस उसका बता सकते हैं, नॉट उसको हम कभी ना तो टच कर सकते हैं ना फिर उसको देख सकते हैं. ओके, वन मोर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, लाइक यू कैन से दैट ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी. ईमानदारी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉन. सो आज की क्लास में हमारा यहीं पे स्टॉप करते हैं. सो मिलते हैं अगली क्लास नई वीडियो के साथ. और ये मेरी आपको वीडियो पसंद आई और फिर समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड ना भूलें. और जो भी डाउट या फिर प्रॉब्लम आए कैन आस्क फॉर मी इन कमेंट बॉक्स. ओके, सो बाय बाय.